یوشس کی جانب دیکھے جا رہا تھا جو اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے ہلکا سا جھک کر کھڑا گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آنکھیں اس قدر سرخ تھی جیسے ابھی ان میں سے لہو ٹپک پڑے گا۔ کس نے سوچا تھا کہ اتنے برسوں میں جب کوئی دل پر دستک دیے بغیر ہی موج اور طوفانوں کی طرح دل کے دریچوں کو ہلا کر اس میں زبردستی کا مکین بن جائے گا تو جان اس مستقل عذاب میں پھنس جائے گی۔ تو مہر کو لگا اس کے گلے میں پھندا سا لگ چکا ہے، اسے سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈومیر، یوشا نے اسے پکارا مگر اس نے ایک دھماکے سے ٹیبل کی ساری چیزیں زمین بوس کی تھی۔ نو! بھاری آواز کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ڈومیر، سنبھالو اپنے آپ کو۔ یوشا اس کی حالت سے پریشان ہوا تھا مگر وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتا آفس سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ بہت بڑی اور بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ ابھی تو دل کی سرزمین پر محبت کی ننھی ننھی کوپلیں کھلی ہوئی تھی کہ ایک طوفان اٹھا اور یوں نپلے ہی اپنے ساتھ اجاڑ کر تباہی برباد کر کے لے گیا تھا۔ وہ کسی اور کی تھی، شادی شدہ ایک بچے کی ماں تھی۔ یہ سوچتی ہی اس کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کو تھی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ابھی مہندی کے فنکشن سے پہلے عیشا اور بلاج کا نکاح ہوا تھا۔ دونوں پاکیزہ ترین بندھن میں بندھے اب اسٹیج پر ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے اور دونوں طرف سے رسم ادا کی جا رہی تھی۔ ہر کوئی بن ٹھن کر تیار گھوم رہا تھا مگر ایک ڈومیر اور یوشا تھے جو گھر کے سادہ سے بلیک ٹراؤزر اور فیروزی ٹی شرٹ میں عام سے سادہ حلیے میں محفل میں سب سے نمایاں تھے۔ تقریباً ایک کونے کی ٹیبل پر ڈومیر چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تاری کیے بیٹھا تھا۔ تبھی حاشر اور یوشا اس کے پاس چلے آئے تھے۔ یوشا تو اس کی تکلیف سے واقف تھا پر حاشر اسے یوں چپ چپ دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ ڈومیر، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ حاشر نے چھوٹتے ہی اپنے بیٹے کی آنکھوں کی اداسی تک رسائی حاصل کرتے اس سے باز پرس کی تھی۔ ڈومیر بڑبڑایا تھا، پہلے باپ کی زندگی میں کم دکھ تھے کہ وہ بھی انہیں دکھی کر دیتا۔ کوئی خاص بات نہیں پاپا، آپ مت پریشان ہو، اس نے مسکرا کر کہا مگر حاشر کو یہ مسکراہٹ کافی کھوکھلی اور مصنوعی سی لگی جبکہ یوشا کبھی سے نگاہوں سے اسے خود کو سنبھالنے کی تنبیہ کیے جا رہا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ چوٹ ہی ایسی تھی کہ وہ سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا، تکلیف ہی ایسی تھی جو روح کو گھائل کر رہی تھی۔ نارسائی اور یک طرفہ جذبات کا غم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ سوچ کر اداس ہو رہا تھا کاش ہماری بھی کوئی بہن ہوتی۔ ویسے تو عیشا بھی ہماری ہی بہن ہے مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری بھی کوئی چھوٹی سی بہن ہوتی۔ نمیر نے بڑی خوبصورتی سے بات کر رخ حاشر کی جانب موڑا تو حاشر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ رپورٹ آج بھی اس نے کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگا رکھی تھی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس بات سے حاشر جہانگیر شاہ 20 سال پل پل کانٹوں پر لوٹا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی، اس کی اولاد اس کی کھوک میں تھی اور وہ بنا کچھ کہے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے کچھ کہنے کا موقع تک نہ دیا، جانے کیوں اسے ایسا لگتا تھا کہ عنایت کی کھوک سے اس کی رحمت ہوئی ہوگی مگر یہ صرف خام خیالی تھی۔ سال سے اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی، نہ عنایت کے ملنے تک کبھی ہو سکتی تھی۔ عیشا اسٹیج پر بلاج کے پہلو میں شرمائی بیٹھی سی تھی۔ یوشا ایک جانب نم آنکھیں لیے کھڑا اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ دلاور شاہ کو اچھے سے علم تھا وہ عیشا کی شادی کر رہا ہے مگر ابھی تک انہوں نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کندھے پر ایک بھاری ہاتھ کا وزن محسوس ہوا۔ یوشا نے ذرا سا مڑ کر دیکھا، دلاور شاہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یوشا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا جب انہوں نے اپنے 6 فٹ سے نکلتے قد والے جوان سالہ بیٹے کو سینے میں بھیجا۔ یوشا کے اتنے سرد انداز پر بھی وہ بدمزہ نہیں ہوئے تھے بلکہ مسکرا کر اب اسٹیج پر چلے گئے تھے۔ وہ وہیں اکیلا کھڑا رہا جب وہ خوشبو میں بھی نرم ہوا جھونکا بنی اس کے سامنے آئی۔ متناسب سرابار سرخ سفید رنگت نیلی کامدار میکسی پر شولڈر کٹ بال کھلے وہ اس کے سامنے تھی۔ پریشان مت ہو یوشا، اپنوں سے ایسے منہ نہیں موڑا کرتے، تم چاہے جتنا بھی انکار کرو مگر وہ یوشا بھاپا ہے۔ حملہ نے نرمی سے کہا تھا، مجھے معلوم ہے، اس لیے انہیں ابھی تک ہم یہاں برداشت بھی کر رہا ہوں۔ نہیں تو وہ لب بھیج کر بولا، اچھا چھوڑو انہیں، کچھ کھایا تم نے؟ حملہ نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ نہیں، میں کے ساتھ کھا لوں گا، اسے سنجیدگی سے کہا۔ حملہ نے اس کا بازو تھاما، چلو پھر اکٹھے کھاتے ہیں۔ وہ اسی لیے نمیر کی جانب بڑھی تھی۔ ماما مجھے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے، اپنا ولیمہ اٹینڈ نہیں کرنا۔ عنایت نے جو شادی میں جانے کے لیے اس کا ڈریس نکالا تھا اسے دیکھ کر وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔
وہ ایک کامدار لہنگا تھا جسے پہننے سے وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ عنایہ نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے ایک نیلے رنگ کی ویلویٹ کی کرتی نکالی۔ یہ وہ لباس تھا جو اس نے آج تک سیٹ کر رکھا، سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ کاٹن ٹراؤزر اور آرگینزا کا دوپٹہ نکلا۔ یہ وہ لباس تھا جو اکشا کو بھی اس فنکشن کے لیے قدرے مناسب لگا تھا۔ یہ ٹھیک ہے ماما۔ اس سے بغیر کسی چو چرا کے وہ لباس اٹھایا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ عنایہ بیڈ پر ڈھل سی گئی۔ زندگی کیسے سزک سکک کر گزر رہی تھی یہ تو وہ جانتی، آیا اس کا خدا۔ وہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا ہی گئی تھی، مگر اپنی پہلی رہائش سے وہ برہان کے پاس شفٹ ہو گئی تھی۔ زندگی یوں بسر ہوئی تھی جیسے کسی جرم کی سزا کھائی تھی۔ ہاں، اسے بے وفا شخص سے محبت اس کا سب سے بڑا جرم ہی تو تھا۔ جانے کیوں ان دنوں دل و جہاں پر ہم وقت ایک سوگواریت سی تاری رہتی تھی۔ وہ اکشا کے اپنے باپ سے ملانے لائی تھی، اسے یہ پیغام بھجوانے آئی تھی کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو اس کے پاس اس کی امانت ہے، مگر ابھی تک حویلی کی جانب رخ کرنے کی اس نے خود میں ہمت نہیں پائی تھی۔ دل جیسے بند سا ہونے لگا تھا۔ اکشا جلدی تیار ہو کر عنایہ کے پاس اطلاع دینے آئی کہ وہ نکلنے لگی ہے تو عنایہ نے بے اختیار بیٹی سے نگاہیں چرائیں۔ وہ مادر اس کی ماں ہی نہ نظر لگ جائے۔ اس کے دلکش معصوم حسن پر نظریں ہی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ نیلے لباس میں ہلکے سے میک اپ پر وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہ ماں سے اجازت لے کر بینکویٹ کے لیے نکلی تھی۔ حویلی میں ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ یہ سب گیسٹ بینکویٹ میں پہنچ چکے تھے۔ عشا ہار کر جا چکی تھی، بس گھر کے لوگ تھے جو تیار ہو رہے تھے۔ حاشر تیار ہو کر کافی دیر سے حسب عادت اس پورٹریٹ کے سامنے کھڑا تھا، باقی سب تقریباً تیار ہو چکے تھے۔ سمرا ڈریسنگ روم میں تھی۔ وہ جانتی تھی اتنی تیاری کے باوجود اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھنا ہے، مگر پھر بھی وہ ہر موقع پر تیار ہوتی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ کبھی تو اس پر ایک نگاہ التفات ڈالے گا، مگر سب بے سود۔ آخر آپ اسے بھول کیوں نہیں جاتے حاشر جہانگیر شاہ؟ برسوں بعد صبر کا پیمانہ لگزش ہوا تھا۔ سال کافی تھے سبیتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ گزارنے کے لیے، تبھی آج وہ چیخ کر پھٹ پڑی تھی، جبکہ کھڑکی کے پاس سفید قلب زدہ شلوار قمیض پہ براؤن مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے اس نفیس سے شخص نے پیچھے مڑ کر اہم سوگوار مسکراہٹ لبوں پر سجائے خالی خالی نگاہوں سے اپنی شریک حیات کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آپ بھول گئے حاشر جہانگیر، آپ نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی؟ سمرا نے چیخ کر بے بسی سے پوچھا تھا۔ تمہارے بے پناہ گورے رنگ سے وقتی اٹریکشن تھی وہ سمرا، جبکہ اس کے سانولے رنگ سے عشق کیا ہے حاشر جہانگیر شاہ نے۔ اب اگر وہ عشق میرے دل سے نکلا تو دل اس کے ساتھ ہی نکل جائے گا، حاشر جہانگیر شاہ کا بلا آخر برسوں بعد اس قبر و مردانہ بچاہت کے شاہکار آدمی کے لب آج واہ ہوئے تھے تو سمرا کو تلخ ترین حقائق کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی لیے اس شخص کے تھا اور بے جیسے الفاظ کے گنجلک میں ہی پھنس رہ کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اب اس سے محبت نہیں کرتا ہے، مگر یہ الفاظ اس نے کبھی زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ آج یہ بھرم میں ٹور کیا تھا کہ اس نے واضح الفاظ میں آج بول دیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ پاپا جلدی آ جائیں، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ باہر سے نمہر حاشر شاہ کی آواز پر سمرا کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس لایانی بحث کو چھوڑ دو سمرا، نہیں تو کسی کے دامن میں کیا کیا آئے، خسارے آئے کون جانتا ہے۔ چلو ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں۔ حاشر آگے بڑھا اور سمرا کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لایا۔ سبھی تیار تھے۔ وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے اور بینکویٹ پہنچ گئے۔ شادی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ سمرا اپنے آنسو چھپاتی خاندان کی خواتین سے مل رہی تھی، جبکہ حاشر جہانگیر شاہ حسب معمول چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی سجائے نمہر کے ساتھ ایک طرف کھڑا بس اسٹیج کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عشا دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو میری گڑیا بھی عشا کے ساتھ اسٹیج پر موجود ہوتی۔ حاشر جہانگیر شاہ کے دل میں ایک پھونک سی اٹھی۔ نمہر نے چونک کر اپنے بابا کی حسرت و یاس میں ڈوبی نگاہوں کے تعاقب میں اسٹیج کی جانب دیکھا۔ عشا بھی آپ کی گڑیا ہے پاپا؟ خود کو تائے جان کی جگہ پر رکھ کر ہی سوچے۔ نمہر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر حاشر جہانگیر شاہ تو اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا کہ اس کا دل بھی جیسے ساخت ہوا تھا۔ ادھر اس کے پاس کھڑی سمرا بھی جیسے اسٹیج کی جانب دیکھ کر دم ساد گئی تھی۔ آج برسوں کے بعد دیکھا تھا، 18 برس یا 18 صدیاں۔ ہاں، وہ حاشر جہانگیر شاہ کی عنایہ تھی، وہ وہی تھی جو اپنی پوری جزویات سمیت اس وقت اسٹیج پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حاشر جہانگیر کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ویلویٹ کی اسی نیلی کرتی میں تھی جو کہ حاشر نے اسے گفٹ دیا تھا۔ اگر وہ اس کی عنایہ تھی تو اتنی کم سن و دوشیزہ کیسے تھی، جیسے وقت چھو کر بھی نہ گزرا تھا، جیسے
اور اس کی عنایت تو سانولی تھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی حاشر جہانگیر کی طرح سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی، اور اگر وہ حاشر جہانگیر کی عنایا نہیں تھی تو پھر عنایا کی پرتوس کی کاربن کاپی کیوں تھی؟ چھوٹے پاپا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یوشا دلاور شاہ اپنا ہر کام چھوڑتے اپنے عزیز جان چاچو کے پاس لپک کر پہنچا تھا۔ عنایا آنکھ بند ہونے سے پہلے نمیر اور یوشا نے ان کے لبوں سے آہا کی صورت ایک نام سنا تھا۔ ہر جانب سورج مغرب سے نکلا تھا کہ مشہور زمانہ بزنس ٹائکون یوشا دلاور شاہ بینکویٹ کے انٹرنس پر کھڑا بار بار اپنی کلائی پر بندی رولیکس کی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا جو کہ تیزی سے گزر جا رہا تھا۔ تقریباً سارے رشتہ دار ہی پہنچ چکے تھے، مگر اسے جانے کس کا انتظار تھا۔ مگر پھر ایک مخصوص گاڑی پارکنگ کی جانب آتی دکھائی دی تو وہ اپنے فون میں بزی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ کر نگاہ اٹھا کر اپنی طرف آتے ایک وجود پر نگاہ اٹھی تو پلٹنا تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ اس کے پیروں کی جانب دیکھتا رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کچھ قدم اپنی منزلوں پر نہیں کسی کے دل پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ وہ آسمان سے اتری کوئی آسیر لگ رہی تھی، یا پچھلے زمانے کی کسی بادشاہ کے دور کی بھولی بھٹکی شہزادہ کو رستہ بھول کے اس 21ویں صدی میں یوشا دلاور شاہ کی دنیا میں چلی آئی تھی۔ وہ پلر کے پیچھے کھڑا تھا، اس لیے انٹرنس سے آتے وہ کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بینکویٹ تک پہنچی اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی تھی، اپنا بیگ ہاتھ میں لیا اور انٹرنس کی جانب آ گئی۔ مگر یہ کیا، یہاں تو دو دائیں بائیں بڑی بڑی انٹرنس تھی، مطلب یہاں دو حصوں میں فنکشن ہو رہے تھے۔ لیکن اب پریشانی یہ تھی کہ وہ کہاں جائے۔ دونوں ہی بارات کے فنکشن تھے اور لوگوں کے جمع میں کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جو اس کا شناسا ہو۔ آخر رکشا ہمت کر کے بائیں جانب بڑھی۔ وہ دور کھڑا زیر لب مبہم سا مسکراتا اس کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ عشاء کا فنکشن کون سے ہال میں ہے۔ تب وہ مصروف سے انداز میں آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ یوشا کی آواز پر وہ دوسرے انٹرنس سے چونک کر پلٹی تھی۔ سامنے ایک شناسا چہرہ دکھائی دیا تو اکشا نے سوکھتا سانس لیا۔ آپ یقیناً عشاء کی گیسٹ ہیں۔ جی، میں تو پریشان ہو گئی تھی، شکر ہے آپ مل گئے۔ اکشا کے منہ سے یہ چند بے اختیار الفاظ نکلے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی سامنے والا یہ الفاظ سن کر مسرور سا ہوا تھا۔ آئیے میرے ساتھ، وہ کہتا ہے اسے اندر ہال میں لے کر آیا تھا، مگر ایک جانب آتے اسے برائڈل روم کی دروازے تک لایا تھا۔ عشاء اندر ہے، آپ اندر جائیں اور کمفرٹیبل رہیں، یوشا نے مسکرا کر کہا۔ بہت شکریہ، یہ آپ کا، اکشا نے مسکرا کر کہا اور روم میں چلی گئی۔ میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب یوشا اس کی جانب آیا تو اس نے معنی خیزی سے یوشا کو گھورا۔ یوشا نے کندھے اٹکا دیے۔ میں اس وقت صرف ایک میزبان ہوں، یوشا نے کندھے اچکا کر سنجیدگی سے کہا۔ عشاء کو اسٹیج تک لایا گیا تو اکشا بھی برائڈل روم سے باہر چلی آئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ اتنا ممی ڈیڈی ماحول دیکھ کر میں کچھ زیادہ ہی نروس ہو رہی ہوں۔ اکشا نے جھنجھلا کر پہلو بدلا۔ اسے اندازہ نہیں تھا عشق اتنی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بظاہر بہت سادہ لڑکی تھی، مگر اب اکشا کو یہاں آ کر اچھے سے اس کی یہ حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ عشاء کی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ عشاء نے اشارہ کر کے اسے اسٹیج پر بلایا۔ وہ اسٹیج کی جانب چلی آئی۔ سب کی نگاہوں کا مرکز بنتے دیکھ کے وہ اندر سے شدید نروس تھی، مگر پھر عشاء کی مسکراہٹ نے اس کا کانفیڈنٹ بحال کیا تھا۔ ابھی وہ اسٹیج پر آئی ہی تھی کہ ہال میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے منہ کر دیکھا تو اسٹیج سے 2-3 ٹیبل دور سب لوگ گول دائرہ بنا کر زمین پر جھکے ہوئے تھے۔ عشاء نے اٹھ کر وہاں آنے کی کوشش کی، مگر یوشا نے دور سے اسے ہاتھ کے اشارے سے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور ایک گہری نگاہ اسٹیج پر گھبرائی ہوئی سی اس لڑکی پر ڈالی، جسے دیکھ کر اس کے چھوٹے بابا کی حالت ہو گئی تھی۔ یوشا نے حاشر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اتنے میں دلاور شاہ بھی ان کے پاس چلے آئے تھے۔ آپ مہمانوں کو سنبھالیں، میں اور نوبیل چھوٹے پاپا کو سنبھال کر ہاسپٹل لے جائیں گے، یوشا نے کہا اور انہیں اپنے بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ سمرا نے ایک نظر اسٹیج پر کھڑی اس لڑکی پر ڈالی اور یوشا کے پیچھے ہی بھاڑ لپکی۔ وہ تینوں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے کھڑے تھے۔ حاشر جہانگیر شاہ کو ICU میں رکھا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مس حاشر، جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ہارٹ اٹیک پیشنٹ ہے تو انہیں کیوں اتنا سٹریس دیتے ہیں آپ لوگ کہ وہ موت کے منہ میں پہنچ جائیں؟ آج بھی انہوں نے کوئی بہت بڑا سٹریس لیا ہے، ڈاکٹر نے کہا تو سمرا لب کھینچ کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ خطرے سے باہر ہے، شکر کریں مائنر سا اٹیک تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر مسکرا، تبھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ سسٹر کی چیخ آواز پر وہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر، پیشنٹ ہوش میں آتی بہت پینک ہو رہے، کہتے ہیں نمیر اور یوشا سے ملنا ہے، سسٹر نے بھیج کر کہا تو وہ دونوں IC کی جانب لپکے۔
समरा भी इनके साथ अंदर जाने लगी जब नुमैर इनकी जानब घूमा था। मामा प्लीज आप इधर ही रुके, पापा की तबीयत का सवाल है। नुमैर ने कहा तो समरा फूट फूट कर रोती हुई रुक गई, जबकि वो दोनों जल्दी से अंदर दाखिल हुए जहाँ वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा वजूद माही में आपकी तरह तड़प रहा था। पापा ये क्या बचपन है, संभालिए खुद को, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या है? नुमैर और यूशा इनके पैर के दाएं बाएं बहुत करीब आए तो नुमैर ने इन्हें कंधों से थामा। हाशिर ने अपना ऑक्सीजन मास्क नोचना चाहा, नुमैर ने अपने लब भेजे। पापा प्लीज। नुमैर वो मेरी बच्ची, मेरा दिल कह रहा है वो अनाया की और मेरी गुड़िया होगी। नुमैर इसे ढूंढो, मेरे पास लाओ। यूशा तुम जाओ। हाशिर के टूटे फूटे अल्फाज सुनकर इन दोनों के पैरों तले से जमीन सरक गई थी। ये तो सोचा ही नहीं था कि इनकी जिंदगियों में ऐसा मोड़ भी आएगा। ओके रिलैक्स, मैं ईशा से पूछ कर निकलवाता हूँ अता पता, आप बेफिक्र हो जाएं। बल्कि आप पैनिक होने के बजाय रिलैक्स होकर जल्दी जल्दी ठीक होने की कोशिश करें। मैं अता पता निकलवाऊंगा फिर। इन्हें मिलने भी तो जाना होगा, छुट्टी मम्मी को, अपनी गुड़िया को, राइट? यूशा ने इनके ऊपर झुक कर इन्हें एक अहम बात बताई तो हर्ष ने अपना बदन पूरी तरह ढीला छोड़ दिया था। यूशा जल्दी करना, अब मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। हाशिर ने लब भेज कर कहा। वो इस वक्त बेबसी की मूरत महसूस होता था। यूशा के इशारे करने पर सिस्टर ने इन्हें सुकून और इंजेक्शन लगाया था। रुबैर तुम इनके पास रहो, मैं ज़रूरी काम करके आता हूँ, यूशा ने कहा तो रुबैर ने इस बात में सर हिलाया कि वो जानता था वो ज़रूरी काम क्या था। यूशा हॉस्पिटल से बैंक्वेट में वापस लौटा था जहाँ अब खाना खाने के बाद मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रहे थे। यूशा ने देखा वो जा चुकी थी। यूशा ने ईशा से इसका नंबर लिया और फिर नंबर के थ्रू इसने इसके एड्रेस तक पहुंचा चाहा था। आज 3 दिन गुजर गए थे। ईशा की शादी का फंक्शन अच्छा रहा। वो सोचती पौधों को पानी दे रही थी। आज छुट्टी का दिन था। तानिशा और आरिफ करीबी मार्केट तक गए थे। इसकी मॉम अनाया किचन में थी कि तभी कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ था। गली से दीवार के पार गाड़ी की आवाज़ आ रही थी और फिर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब एक BMW इन्हीं के गेट से अंदर आती ड्राइव वे पर खड़ी हुई थी। वो क्योंकि पौधों की ओट में थे इसलिए लोगों को नजर नहीं आई थी। हाशिर की तबीयत संभली तो वो पहली फुर्सत में इसके नुमैर और यूशा से इस चीज़ का तकाजा किया जो वो इनसे मांग रहा था। यूशा ने इसके नंबर के जरिए इसके घर के एड्रेस तक रसाई हासिल की थी और यूनिवर्सिटी से इसके डॉक्यूमेंट्स तक। इसकी गाड़ी की जगह के नाम पर इसके मामू मूसा इब्राहिम का नाम लिखा था और वालिदा का नाम अनाया ही लिखा था। ये तफसीलात जानकर हाशिर जहांगीर शाह के पैरों तले से जमीन सरक गई थी। हाशिर जहांगीर की तबीयत संभली तो वो एक लम्हा की भी देर किए बगैर यहाँ पहुंच चुके थे। सबसे पहले बड़ी बेकरारी से गाड़ी से हाशिर जहांगीर ही बाहर निकले थे। इस वक्त घर खाली खाली ही दिखाई दे रहा था जबकि अक्षर की निगाहें इस अजनबी शख्स के जाने पहचाने कदो खान पर जम सी गई थी। हाशिर के पीछे गाड़ी से नुमैर, यूशा, उद्दीन और समरा बाहर आए थे। हाशिर के कदम बड़ी बेकरारी से अंदर की जानब बढ़े थे। ड्राइवर से आगे एक खुला लाउंज था और इसके अंदर किचन से खटर फटर की आवाज़ें आ रही थी। अनाया ने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो लगा तानिशा वापस आ गई है। अक्षा, ताशी आ गई क्या? अगर आ गई है तो शराफत से लंच के लिए किचन में आओ सब। वो लोग लाउंज में दाखिल हुए थे जब हाशिर का सांस इस जालिम की आवाज़ सुनकर साकित हुआ था। वो सब लाउंज में ही खड़े रहे जबकि हाशिर धड़कते दिल और लरजते कदमों से आगे बढ़े थे। यकीन नहीं आया था जिसे ढूंढने में साल लगा दिए थे वो जिंदगी के इस मोड़ पर इसे मिलेगी। उसने शलवार कमीज पर स्किन शॉल कंधों पर डाले धीमे से किचन में दाखिल हुआ तो एक नाजुक से वजूद की पुश्त नजर आई। वो इस वक्त हाफ वाइट सूट पर बड़ी सी स्याह शॉल ओढ़े हुई थी। अपने पीछे आहट पर यूं लगा अक्षा किचन में आई हो। और कितनी देर लगेगी भाई खाने की टेबल तक आने में? अनाया ने झुंझला कर कहा। 20 साल, हाशिर जहांगीर ने लम लहजे में कहा था। आंखों में आंसू थे और कदम लड़खड़ा गए थे। अनाया को लगा इसके समातों ने फिर से धोखा खाया है कि इसकी आवाज़ की सरगोशियां तो 20 साल से उठते बैठते सोते जागते से अपने कानों में गूंजती महसूस होती थी। अक्षा तो वो सर झटकती वापस मुड़ी थी जब 72 की हो गई थी। 20 बरसों बाद वो शख्स फिर से ठीक इसके सामने खड़ा था मगर कंधे झुके हुए थे और आंखों में आंसू थे। अनाया का दिल चाहा शिद्दत गम से इसका कलेजा फट जाए मगर एक ये दिल ही था ढीठ जो इस वक्त भी ना फटा था। जब अपनी बर्बादी की दास्तान हाशिर जहांगीर शाह की बीवी की जबानी सुनी थी अनाया ने लड़खड़ा कर स्लैब पर हाथ रखकर इसका सहारा लिया था। हाशिर लरजते कदमों से इसकी जानब बढ़ा था। अनाया, कपकपाते आवाज लबों से एक नाम की तकरार की।
जा यहाँ से। वो बस इतना ही कह पाई थी कि जब इसे लगा जो काम 20 साल में अब तक ना हुआ अब ज़रूर हो जाएगा, कि अनाया को लगा इसका सच में दिल फट जाएगा जब इस शख्स को अपने कदमों में झुकते महसूस किया। ये क्या कर रहे हैं आप? वो सदमे और गम से निढाल पीछे हटी थी। अनाया, मुझे माफ कर दो। हाशिर जहांगीर शाह इसके सामने घुटनों के बल झुके फूट फूट कर रोते इसके आगे दोनों हाथ जोड़ गए थे, तो अनाया को लगा वो सचमुच आज मर जाएगी। तभी होश और खर्च से बेगाना होती जमीन बोस होती तो हर्ष ने लपक कर इसे खींच कर अपने सीने में भेजा था। वो इस वक्त सादा सी टी शर्ट ट्राउजर में थी। हाथ धोकर तजस्सुस से मौजूद मजबूर होकर अपने स्कार्फ से हाथ साफ कर दी अंदर दाखिल हुई थी। अपने पीछे आहट पर वो 4 लोग जो नम आंखें लिए खड़े थे इसकी नाना मुतवज्जह हुए थे, जबकि इनमें से मौजूद एक शख्स ने बहुत गहरी निगाहों से इसे सरता पैर देखा था। आप लोग तो ईशा के घर वाले हैं। वो ठीक तो है, मतलब आप लोग यहाँ कैसे? अभी वो कुछ कह पाती कि अंदर किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी। मॉम तो किचन की जानब लपकी थी, मगर अगला मंजर इसे बिल्कुल हजम ना हुआ था। वो शख्स उसकी माँ को बाजू में उठाए हुए बाहर की जानब बढ़ा था। मामा तो घबरा कर इनकी जानब लपकी, लेकिन फिर खुद ही इन्हें अपनी माँ के कमरे की जानब इशारा किया। इस तरफ हाशिर जहांगीर अनाया को इसके कमरे में लाए और इसे बेड पर नरमी से लिटा दिया। अभी फिलहाल तो इसे इतने बरसों के इंतजार और तलाश के बाद अनाया की जान की फिक्र थी कि अपनी गुड़िया की जानब तवज्जो देने का वक्त कहाँ था। सब इनके पीछे इसी कमरे में चले आए थे। अक्षय ने पीछे मुड़ के दराज में से माँ की बीपी की टैबलेट निकाली और जल्दी से इसका मुंह खोलकर इसकी जबान के नीचे रख दी। अनाया, हाशिर जहांगीर शाह ने इसे दीवाना वार पुकारा था और इसका चेहरा नरमी से थपथपाया। अक्षय ने इनके चेहरे पर पानी कैसे छींटे मारे तो अनाया ने धीमे से आंखें खोली। वो आंखें खोलकर फूट फूट कर रो दी थी। मॉम, क्या हुआ है आपको? आप बताते क्यों नहीं? आखिर कौन है आप? अक्षय ने हाशिर की जानब देखकर कहा। अभी फिलहाल हमें तुम्हारी मॉम से जरूरी बात करनी है बेटा। आप लोग जरा बाहर जाएं। हम आपके अपने ही हैं। अनाया ने समरा की आवाज सुनी थी तो वो मुश्किल उठ कर बैठी थी, लेकिन अक्षय ने कुछ कहना चाहा। अक्षय, बाहर जाओ। इसे अपनी मॉम की सर्द और स्पॉट आवाज सुनाई दी तो वो उठकर बाहर चली गई। इसके पीछे नमैन, यूशा और हमीद भी बाहर निकल गए थे। तानिशा जो मार्केट गई थी, इसे अपनी गाड़ी गली में ही पार्क करनी पड़ी। जब अपने घर के अंदर एक बड़ी सी गाड़ी देखकर वो हैरान हुई थी, तो गाड़ी से उतरकर आरे की उंगली थाम कर घर में दाखिल हुई थी। माँ, डैडी आए हैं। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर आर्य भी एक्साइटेड हुआ था। शट अप आर्य, हर वक्त डैडी डैडी किया। मम्मा कुछ नहीं लगती तुम्हारी। वो चिढ़कर आर्य पर उलट पड़ी थी। वो बिल्कुल सहम गया था। एक ऊंचा लंबा शख्स आता दिखाई दिया तो वो तानिशा से नाराज होकर अंदर की जाना भागा और अंदर से आने वाले शख्स की टांग अंदर से लपट गया। मैं जो जरूरी कॉल सुनते लाउंज से बाहर की जाना पा रहा था, सामने ही इस दुश्मनी जान को देखकर बुरी तरह अपने लब भेज लिए। मगर अगला मंजर बिल्कुल गैर मुतवक्के था। जब एक छोटी सी नन्ही जान इसकी टांग से लपट गई थी, नुमैर का दिल कैसे उठाकर सीने से लगा ले कि वो छोटा सा बच्चा रो रहा था। तानिशा भी इसे अपने घर यूं सामने देखकर हुनक हुई थी। सर आप यहाँ? आरिफ, छोड़ो इन्हें। तानिशा ने कहते आरिफ को अपनी जानब खींचा। वो कोई भी जवाब दिए मगर माथे पर बल डाले घर से बाहर निकल गया था। इस हदक पर तानिशा के माथे पर भी बल आए थे। ये समझते क्या है खुद को? वो दांत पीस कर रह गई थी और अंदर की जानब बढ़ी, मगर अंदर कुछ और ही अजनबी लोग भी थे। मगर वो अक्षय के करीब गई जो अपनी माँ के दरवाजे के बाहर बुत बनी खड़ी थी, जो अंदर से आती तमाम बातें सुन रही थी और फिर एक झटके से पैर पटकती अपने कमरे में बंद हुई थी। सबरा के एक एक लफ्ज पर अनाया फूट फूट कर रो रही थी। शायद तुम इस दिन आधी अधूरी बात या सिर्फ मेरी कही हुई गुफ्तगू सुनी थी कि हाशर को अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई। अगर पूरी बात सुन लेती तो आज हम सब इस कदर तकलीफ में नहीं होते। हाशिर तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाले थे। इन्हें तुमसे मोहब्बत थी तो मेरा साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। वो तुमसे माफ़ी मांगने वाले थे और अपने किए पर अमल का मुदावा करने वाले थे। अगर मैं चाहती तो अब भी झूठ बोलकर तुम लोगों को कभी ना मिलने देती, मगर इनमें सालों में मैंने तुम्हारे लिए हाशिर को पल पल तड़पते और मरते देखा है। हाशिर ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। वो सामने सोफे पर बैठी गुज़श्ता सालों का तमाम अहवाल सुना रही थी। अपनी के हर अमल पर शर्मिंदा इससे माफ़ी मांग रही थी। वो निदामत के आंसू बहा रही थी कि इन गुजरे माह साल में वो सब कुछ करके इसे भी तो कभी चैन नहीं पड़ा था। इस कदमों में दौलत के अंबार लगे थे, मगर फिर भी वो
दो पर खुलूस दिल दिखा कर कभी दिल सुकून हासिल नहीं कर पाई थी। वो इस दिन की भी हर एक छोटी से छोटी बात अनाया के गोश गुजार कर चुकी थी, जो इस दिन हाशिर ने इससे कहा था। वो अनाया को सब सच बता चुकी थी। तभी वो अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे गुजरे माह साल के खसारों पर जी भरकर आंसू बहा रहे थे। हाशिर ने इसे अपने दिल की एक एक बात बताई थी कि कैसे इसने अनाया से दीवानों की तरह मोहब्बत की थी, और फिर जब वो दूर हो गई तो इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, इसे ढूंढना। हाशिर जहाँ की शाह इसे दीवानों की तरह मोहब्बत करने वाली अनाया ने सिर्फ इस वक्त ये सोचा था कि इसके निकाह में इसके नाम से अपनी तमाम जिंदगी गुजार देगी। काश उसने ये सोचा होता कि गिरबान से जिन जोड़कर इससे इससे बेवफाई की वजह पूछ ले, और पूछे कि हाशिर ने इसके साथ ये क्यों किया था। अनाया, मुझे माफ कर दो। हाशिर ने बेड पर इसके सामने बैठे फिर से इसके पैरों पर हाथ रखे, जिन्हें अनाया ने बेतहाशा रोती तड़प कर अपने हाथों में थाम लिया। ऐसे मत करें, प्लीज ऐसे मत करें। अनाया बिलक बिलक कर रो दी तो हाशिर ने इसे खींच कर खुद से लगा लिया। वो हाशिर के कंधे से लगी बिलक बिलक कर रो दी थी, और फिर हाशिर को सुनाई गई कि इन गुजरे साल में वो कहाँ किसके साथ और कैसे रही। दोपहर से शाम ढल चुकी थी। आखिर तानिशा को ही कुछ खाने पकाने का ख्याल आया। तब वो आरिफ को सुलाकर किचन में चली आई। कुछ डिशेस बाहर से ऑर्डर की और कुछ खुद बना ली। सब गेस्ट यही थे। शायद तमाम शिकवे गिले धुल चुके थे कि अब वो सब अनाया के कमरे में ही बैठे थे। तानिशा जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। अक्षा अपने कमरे में बंद थी। वो इसकी तकलीफ समझ सकती थी। बाप के खाने में गार्डन के नाम की शानी में बाबू का नाम बचपन से लेकर अब तक इसके लिए, इसकी शख्सियत के लिए एक सवाल के निशान बना रहा था। तकरीबन 14 साल की उम्र में इसने बुरहान और अनाया की तमाम बातें सुनकर सारी हकीकत जान ली थी। तब इसने अनाया और बुरहान पर जाहिर नहीं किया था कि वो सच जान चुकी है। हाँ, तानिशा के सीने से लगकर खूब फूट फूट कर रोई थी, और अब तब से अपने सीने के अंदर अपने देखे बाप के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत का एक जहां आबाद किया हुआ था। इसने जितनी अपनी माँ से मोहब्बत की थी, इससे कई गुना ज्यादा अपने बाप से नफरत भी की थी। तानिशा यही सोचकर परेशान हो रही थी कि इन लोगों ने अनाया को तो मना लिया, मगर अब अक्षा को कैसे मनाएंगे। अभी डिनर का वक्त नहीं हुआ था, मगर वो जानती थी सबने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, इसलिए इसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। वो अनाया के कमरे में आई थी। मामा, खाना लग गया है। किसी ने कुछ नहीं खाया तो पहले खाना खा ले। वैसे भी आपने अभी अभी मेडिसिन भी ले ली है। तानिशा ने अनाया को कहा। हाशिर ने इस बच्ची की जानब देखा। ये मूसा बुरहान भाई की बेटी है। अनाया ने आहिस्ते से सबसे इसका तारफ करवाया तो इसने सर को हल्का सा खम दिया। नुमैर ने एक नज़र इसे देखा और अपने लब भेज से अपनी निगाहें फेर ली। इसके कहने पर सब खाने की टेबल पर आए। ये आप क्या कह रही हैं ममा? अक्षा ने चीख कर कहा था। जो तुमने अभी सुना है अक्षा, अनाया संजीदगी से कहा जाती थी। जरा सी भी नरमी बढ़ती तो वो हाथ नहीं आएगी। तानिशा अपना आरिफ और अक्षा का खाना यही कमरे भी निकाल लाई थी, मगर लाख मिनट के बावजूद इसने एक भी निवाला जहर मार नहीं खाया था। लेकिन फिर जब आरिफ इसके पीछे पड़ गया तो इसे चंद निवाले खाने ही पड़े। अभी वो ढंग से खाना खा भी नहीं पाई थी कि अनाया कमरे में चली आई थी और अक्षा से कहा कि वो लोग हवेली शिफ्ट हो रहे हैं। इस आदमी को आप माफ कर सकती हैं ममा, लेकिन आप अच्छी तरह समझ लें कि वो मेरा कुछ नहीं लगता, इसलिए मैं किसी अजनबी के घर जाकर क्यों रहूं। अक्षा चीख कर बोली थी। अक्षा, तमीज से बात कर, वो बाप है तुम्हारा, और ये बाप इसी वक्त कहा था जब मुझे मेरी 20 साल की जिंदगी तक अपने इर्द गिर्द के तमाम लोग मेरी माँ की नाजायज औलाद समझते थे। अक्षा गम और गुस्से से पागल हो चुकी थी। तभी शायद पता न चला कि क्या कह बैठी है, मगर अगले लम्हे अनाया का जिंदगी में पहली मर्तबा इस पर हाथ उठा था। चटाक। अक्षा ने बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखा था, मगर माँ को बेहोश होते देखकर इसके खुद के हाथों पैरों तोते उड़ चुके थे। मामा प्लीज ये थोड़ा सा सूप पी लें। अक्षा ने चम्मच इनके मुंह के आगे किया था, मगर अनाया ने बेरुखी से अपना मुंह दूसरी जानब घुमा लिया। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हादसे के बाद मर जाना चाहती थी, मगर मेरी खोख में एक नन्ही सी जान पल रही थी, जिसकी वजह से मैंने खुद को जिंदा रखा और इसे 20 साल एड़ियां रगड़ रगड़ कर पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कि वो औलाद बड़ी होकर अपनी माँ को बद किरदार बोल सके। ऐसा ही है ना अक्षा? अनाया की आंसुओं से भीगी आवाज पर अक्षा का दिल तड़प उठा था। मामा प्लीज, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो बस, वो कहती कहती अपने लब भेज गई। अच्छा प्लीज, मेरी इस बात से आपका दिल दुखा हो तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दे। अक्षर रो पड़ी तो अनाया ने इसकी जानब घूम कर इसे सीने में भेजा था। अनाया का बीपी शूट हुआ था। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो लोग घर वापस आए थे।
इस दौरान हाशिर ने इससे कई मरतबा बात करने की कोशिश की थी, मगर वो इनसे कलाम नहीं कर रही थी, ना ही करना चाहती थी। लेकिन फिर अक्षा तिलमिलाने और छटपटाने के बाद इनका तमाम सामान हवेली शिफ्ट कर दिया गया था और इस पर अक्षा कुछ भी नहीं बोल पाई थी। समरा ने इनके लिए हवेली का एक पूरा पोर्शन सेट करवाया था ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, और अचानक इतनी बड़ी तब्दीली पर अजीब ना लगे। वो दोनों रोने धोने में मसरूफ थी जब तानिशा वहीं चली आई थी। ताशी, तुम भी। फुप्पो प्लीज, वो आप लोगों का घर है, आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए, मैं वहाँ नहीं जा सकती। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मजदान और पापा आने तो वाले हैं यहाँ। अगर मैं आप लोगों के साथ गई तो मेरा सेल्फ डिफेंस को मुतासिर होगा, बहुत अजीब लगेगा, तो प्लीज़ मुझे मत मजबूर करें। तानिशा ने इन्हें खुद को कुछ कहने से पहले रोक दिया। गाड़ी एक झटके से इस बंगले में रुकी थी। क्या ख्याल है, वो हवेली शिफ्ट होगी? यूशा ने फ्रंट सीट से उतरते हुए यूं नहीं बात बराए बात की। कौन? नुमैर ने गैर दिमागी ख्यालों में उससे पूछा। जाने क्यों यहाँ आकर इसके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती थी। तो यूशा ने उसे घूरा। इसी असना में वो घर के अंदर दाखिल हो गए थे। मॉम, नुमैर ने अनाया को आवाज़ दी। वो सभी अनाया से मिल चुके थे और वो रिश्ता दिल से तस्लीम किया जो इनका इस वजूद से बनता था। बल्कि जब से शहराम को पता चला था कि इसकी एक आपी भी है, तो इसने तो पूरी हवेली सर पर उठा रखी थी और इनके वेलकम की तैयारियों में मगन थे। मैं इधर हूँ बेटा, इधर ही चले आओ। अनाया ने इसे रूम में बुलाया तो वो दोनों वहीं चले आए। हम लेने आए थे आपको मॉम, पापा भी सभी से वेट कर रहे हैं आप लोगों का। नुमैर ने वहां बैठे एक वजूद को बुरी तरह नजरअंदाज करते अनाया को मुखातिब किया था। हम तैयार हैं, अनाया ने कहा तो अक्षय ने अपने लब भेज लिए। चारों नाचारी से भी उठकर तैयार होना पड़ा था। अनाया अक्षय का हाथ थामे बाहर निकली। तानिशा आरिफ को लेकर कमरे में चली गई कि वो इन्हें जाते हुए देखता तो काफी शोर मचा था। मॉम, ये यहाँ पर अकेली रहेगी? इनके हस्बैंड किधर है आखिर? नुमैर कहे बगैर रह नहीं पाया। यूशा ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली। नुमैर फ्रंट सीट पर बैठा और वो दोनों पिछली तरफ बैठ गई। वो मैनेज कर लेगी बेटा, वैसे भी कुछ ही दिनों में मूसा और वजदान यहाँ आने वाले हैं। अनाया ने इसे नरमी से कहा। तब तक मैं अपने भरोसे के आदमी को यहाँ वॉचमैन रख दूंगा। नुमैर ने कहते मजीद कुछ पूछने की खुद को रोकने के लिए अपने लब बुरी तरह भेज लिए। गाड़ी हवेली के ड्राइव वे पर रुकी तो वो लोग गाड़ी से बाहर आए। यूशा शदगीजी से अनाया की जानब आया और अनाया का हाथ थाम लिया। आंटी, आप मेरे साथ आए। वो कहते अनाया को एक तरफ ले गया तो अक्षा को अंदाजा हो गया कि वो यकीनन इसका नाम को हाशिर जहांगीर के पास ले गया होगा। गुड़िया, फिर मैंने जल्दी से गाड़ी से उतरकर अक्षा के करीब आया और उसे मुखातिब करने की कोशिश की। मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती हूँ, समझे आप? वो दरिश्तगी से कहती है। इसका बैग हाथ से पकड़ती मुलाजमा के हम कदम हो गई तो नुमैर ने एक सर्द सी सांस खींची। वो काफी देर कार से टेक लगाए खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था। वजदान इसके शौहर का नाम होगा। नुमैर के दिल को किसी ने पांव तले कुचला। वो मुठियां भेज कर अपने बालों में हाथ फेरता अंदर चला गया। यूशा इसे एक दरवाजे के सामने छोड़कर गया था कि वो अंदर चली आई। हवेली को सिरे से दोबारा रेनोवेट करवाई होगी कि इसके तो नक्शा ही बदल चुका था। यूं लगता था जैसे वो किसी महल में चली आई है और अब वो बुरी तरह नर्वस होती है, अपनी उंगलियां बुरी तरह चिढ़का रही थी। आखिर हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई तो वो शख्स इस मास्टर बेडरूम के बीचों बीच खड़ा दीदा दिल फर्श पर बिछाए खड़ा था। अनाया अंदर दाखिल हुई तो हाशिर ने मुस्कुराते सुर्ख भरी आंखों से अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे अनाया ने झिझकते हुए थाम लिया। हाशिर ने इसे अपनी जानब खींच कर बड़ी बेकरारी से अपने सीने में भेजा था। वेलकम बैक टू आवर होम। हाशिर, ये लुक क्या? वो बौखलाई। बहुत इस इत्मीनान से जवाब दिया। वो बिदक कर इसकी बाहों के हिसार से दूर निकली थी। शर्म करे, जवान बच्चों के बाप बन चुके हैं आप। वो कानी की लो तक सुर्ख पड़ गई थी। तभी शर्मा कर बोली। हाशिर ने इसका हाथ थामा और इसे लेकर बेड पर बैठ गया। अगर शर्म करता तो आज जवान औलादा का बाप होता ही नहीं। हाशिर ने इत्मीनान से जवाब दिया था। अनाया ने इसे घूरा, मगर हाशिर ने हाथ बढ़ाकर इसे फिर से अपने हजार में कैद कर लिया। वो दोनों फिर अपने बरसों के दर्दनाक हिजर और सख्ती जिंदगी के खसारों पर रोए दिए थे। मुझसे गलती हो गई हाशिर, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे आपको आपकी बेटी से दूर नहीं करना चाहिए था। मुझे आपसे वजाहत मांगनी चाहिए थी। वो रोई गई। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुए। अगर वो सब नहीं होता तो तुम ऐसा नहीं करती। तुम्हारा रद्द अमल नॉर्मल था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता।
हाशिर ने इस यकीनत से इसका माथा चूमा। वो आज भी इतनी ही दिलकश और सोबर लग रही थी जितनी इस वक्त थी। बस उम्र के इजाफे ने इसे मजीद ग्रेसफुल कर दिया था। आप मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? अनाया ने मुंह बनाया। और तुम मेरा। हाशिर ने इसकी गाल पर अपने लब रखे थे। आप आज भी ही इतने लोफर हैं जितने इस वक्त थे। वो इससे जरा सा फासले पर हुई। और तुम भी तो आज भी इतनी ही खूबसूरत और पुरकशिश हो जिसे बार बार प्यार करने का दिल करे। हाशिर ने फिर से इसे करीब किया था। अनाया मेरी गुड़िया तुझसे बेतहाशा नाराज है। हाशिर ने भीगे लहजे में कहा था और इसकी गोद में सर रखा। बहुत जिद्दी है, बिल्कुल आप पर गई है। मान जाएगी, आप फिक्र मत करें। हम मिलकर मना लेंगे इसको। अनाया ने इनके घने बालों में हाथ फेरा तो हाशिर इतने वर्षों बाद पुरसुकून होकर आंखें मोड़ ली। वो अपना सामान पटकने के अंदाज में बैग से निकाल निकाल कर इस कमरे में फेंक रही थी। आंखों में आंसू थे और दिल गम से फटा जा रहा था। तानिशा और आरिफ का ख्याल बार बार सताने लगा। वो दोनों अकेले होंगे और वो यहाँ इन अजनबियों में चली आई थी। अक्षय का गम गुस्से से बुरा हाल था। चौंकी तो तब जब अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। इसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ एक 16 साल लड़का हाथ में एक गिफ्ट पैक लिए मुस्कुराते हुए इसकी जानब देख रहा था। आप ही, आप मेरी आप ही है ना? मेरा नाम शहराम शेर जहांगीर है। मैं आपसे मिलने आई हूँ और आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आपको अंदाजा नहीं मैं कितना खुश हूँ। हम चारों भाइयों को कितनी ख्वाहिश थी कि हमारी बहन हो। उमेर भाई को लंदन कॉल करके मैंने बताया तो वो किस कदर खुश थे मैं बता नहीं सकता आपको। वो पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं ना। और नुबैर भाई और वदीद भाई भी बहुत खुश हैं। और आप यकीन नहीं करेंगी कि इस बात से वो खड़ूस सड़ियल आदमी यूशा भाई भी बहुत खुश हैं। वो काफी बातों नहीं था। अक्षा के माथे पर बलों में इजाफा हुआ था। सुनो, तुम जो कोई भी हो मैं तुम लोगों की कुछ नहीं लगती, इसलिए जाओ यहाँ से। अक्षा ने इसे झड़का मगर वो जरा सा मायूस नहीं हुआ था। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप मेरी आप ही हैं। मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया था। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अक्षा सफाई थी। नहीं जाऊंगा। वो भी इत्मीनान से वहीं सोफे पर बुरजमान हो गया था। अब अगर तुम यहाँ से चलते फिरते नजर ना आए तो मैं ये डेकोरेशन पीस तुम्हारे सर पर नहीं मारूंगी। अक्षय ने चिढ़कर एक शीशे की छोटा सा डेकोरेशन पीस उठाया। मार दे। मैं नहीं जाऊंगा। अपनी यापी के लिए मैं सर भी फड़वाने को तैयार हूँ। शहराम ने कहा। अक्षय ने इसे डराने को वो डेकोरेशन पीस इसकी जानब फेंका। इसे लगा था वो झुककर अपना आप बचा लेगा मगर ये इसकी गलत फहमी साबित हुई थी। वो यूं नहीं ढेरों की तरह बैठा रहा और डेकोरेशन पीस सीधा इसके माथे पर लगा। हल्का सा चीरा पड़ा और माथे से खून उबल पड़ा। अक्षय ने अपनी चीख दबाने को अपने लबों पर हाथ रखा और तड़प कर इसकी जानब लपकी। ये लोग क्या हो गया? तुम सामने से क्यों नहीं हटे? अक्षय ने इसके माथे से बाल पीछे हटाए और उसके माथे पर अपने दुपट्टा रख दिया। आप ही आप मुझे चाहे मारे या जो मर्जी सलूक करें, मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भाई हूँ आपका और आप मेरी आप ही हैं। शहनाब ने माथे से उठती टीसों को बर्दाश्त कर दी। अक्षय को नम आंखें लिए हुए कहा था। अक्षय अपनी जगह पर जैसे पत्थर की बन गई थी। फिर हर चीज नजरअंदाज करते हुए शहनाब को गले लगाए फूट फूट कर रो दी थी। शहराम ने भी मुस्कुराते इसके गिर्द अपने बाजू हमाल किए। वो आरिफ को मॉन्टेसरी छोड़कर ऑफिस आई थी और अब एक ज़रूरी फाइल पर काम कर रही थी। इसका ध्यान आरिफ की तरफ लगा हुआ था इसलिए वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। इसे 2 घंटे के अंदर अंदर ये फाइल तैयार करने को बोला गया था मगर अब 3 घंटे हो चुके थे। वो इसी में उलझी थी और अब तक एक्सप्रेसो के जाने के कितने कप अपने अंदर उड़ेल चुकी थी। तभी इंटरकॉम पर रिंग हुआ तो इसने कुरेडर उठाकर कान से लगाया। मिस तानिशा, सर नुबैर फाइल अपने ऑफिस में मंगवा रहे हैं। इन्हें अभी फाइल लेकर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। मैनेजर शहजाद ने कहा तो तानिशा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सॉरी सर, वो तो अभी रेडी नहीं हुई। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं मिस तानिशा? फाइल आपको कल से दी हुई है और आपने रेडी नहीं की। क्या हुआ मिस्टर शहजाद, मेरे ऑफिस में अभी तक फाइल क्यों नहीं पहुंची? अभी मैनेजर शहजाद बात ही कर रहे थे कि इसे फोन में से ही नुमैर हाशिर शाह की गसीली आवाज़ सुनाई दी तो इसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। एक तो वो इन नापसंदीदा तरीन लोगों के दरमियान जॉब कर रही थी। दूसरा, जाने इससे क्या बैर बांध कर बैठा था कि अब तो तानिशा ने भी नोट कर लिया था कि इसे देखकर इस आदमी के माथे पर बलों का जाल सा बिछा जाता था। सर, मिस तानिशा ने अभी तक फाइल रेडी नहीं की। मैनेजर ने मध्यम सी आवाज में कहा तो नुमैर का दिमाग घूम गया। व्हाट रबिश! अब ऐसे काम होगा हमारी कंपनी में? मैं देखता हूँ। वो दांत पीस कर मैनेजर शहजाद के कैबिन से निकला और यूं नहीं भड़कता तानिशा की कैबिन में चला आया। उसे देखकर घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। मिस तानिशा, मुझे फाइल चाहिए अभी और इसी वक्त।
उस स्पॉट तर्जमे से देखकर बोला था, जाने ऐसा कौन सा और किसका गुस्सा था जो आजकल हर एम्प्लॉय और खासकर वो इस पर उतार रहा था। स सॉरी सर, वो रेडी नहीं कर पाई। दरअसल फुप्पो आप लोगों की तरफ चलेंगी तो मुझे आरिफ की वजह से थोड़ी परेशानी। आप अपनी परेशानी अपने घर छोड़कर ऑफिस तशरीफ लाया करें मिस तानिशा। यहाँ आपका कोई एक्सक्यूज़ काबिल कबूल नहीं है। बी प्रोफेशनल। तो मैंने इसे बेतासुर लहजे में कहा, मगर अगले लम्हे इसकी आंखों में झिलमिलाती नमी देखकर हाशिर को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। हाशिर ने अपना माथा हिलाया। एक्सक्यूज़ मी, वो कहता फौरन अपने ऑफिस चला आया था। सीने पे फिर घुटन का एहसास बढ़ गया था। ये क्या हो गया था इसके साथ? खुद समझने से कासिर था। तमाम जज्बात जैसे बर्फ की मानद मुंजमद हो गए थे। वो तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत पोलाइट रहा करता था, और अब कुछ दिनों से हर किसी की सख्ती आई हुई थी। वो जानता था वो रो रही होगी। तो मैंने अपनी टाई की नॉट ढीली करते अपना कोट उठाकर सोफे पर उछाला। इंटरकॉम पर अपनी डोपियो का मग अपने ऑफिस में फौरी तौर पर पहुंचाने का कहा।